السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں تو ویسے بہت سی بات کرنے کی ہیں، لیکن جس تیزی سے یا جس سمت پہ چیزیں آگے جا رہی ہیں اس سے بہت سی چیزوں میں وضاحت آ رہی ہے، جو سے آپ کہہ سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے چیزوں کی۔ سب سے پہلی بات جو ہے، ورچوئل جلسے نے تو جہاں انقلاب برپا کیا وہاں ایسے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں جو شاید آنے والے دور میں کیا حالات اور واقعات کیا کرے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر دوسری بات جو ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو باتیں اب دیکھیں نا، 2 ڈھائی 3 مہینوں کے اندر اندر ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ جو سیکورٹی والا معاملہ ہے اس کی تہہ تک جانے کی ہم نے کوشش کی، جو خط و کتابت سامنے آ گئے، جو ایک امپریشن دینے کی کوشش کی ہے، وہ تو آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سٹوری نکل آئی ہے ساتھ۔ اور اب بلکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس میں کوئی وضاحت دینا بنتی تھی، ہو چکا تھا، بات ختم کرتے، لیکن وہ بات کر کے بہت سی چیزیں اب اور آگے نکل چکی ہیں۔ وہ عام انتخابات 2024 میں جو الیکشن کمیشن نے ووٹر کی جو تفصیلات فراہم کی ہیں، اس میں دھاندلے کی اس حد تک جو حالات سامنے آ گئے ہیں، وہ ایک تکلیف کا باعث بنیں گے۔ پوری ڈیٹیل میں نے کوشش کی ہے اکٹھی کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ان سارے ایشوز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ بڑی خبر ہے۔ سول جج جو ہے نوید خان نے عمران خان صاحب اور اسد عمر کو بری کر دیا ہے۔ 25 مئی کو جو لانگ مارچ والا واقعہ تھا، یہ واقعہ اس طرح ہے کہ 25 مئی کو آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے کال دی تھی تو لوگ نکلے، لیکن جس طرح پولیس نے بیٹھ کر آپریشن کیا اور روکا، لوگ نہ پہنچ سکے۔ اس پہ پرچہ درج کیا، جلاؤ گراؤ کا، دہشت گردی کا، اس میں بری کر دیا ہے۔ اس کی طرف اگر دوسری طرف 9 مئی کے لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہی تو کرتے ہیں کہ 25 مئی میں جب نکلنے نہیں دیا تھا، 9 مئی میں کیوں نکلنے دے دیا گیا؟ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن آپ تک یہ اتنا صرف بتا دیں۔ اگلی جو بات ہے، پشاور ہائی کورٹ عدلیہ کی جو زیر نگرانی جو الیکشن کرانے والا معاملہ ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا، چونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ میں کہیں دور دور تک اس میں ریلیف نہیں دیکھ رہا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا، اور سپریم کورٹ نے ساری چیزیں کو ختم کرتے بالکل بات ختم ہو گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو بھی غیر قانونی کام دیا ان کو پروٹیکشن وہ دے دی ہے۔ سماعت جب ہوئی اور کہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ پنجاب کی حد تک معطل ہونا چاہیے تھا۔ جوڈیشل آفیسر کا کنٹرول الیکشن کے پاس ہوگا، کسی الیکشن افسر پر اعتراض تو یہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن عملے کو 2 ماہ پہلے تعینات کرنا ہوتا ہے، اور انتظامات نہیں کیے تو صاف شفاف الیکشن، یعنی پورا 5 سال بیٹھ کر الیکشن کمیشن ان چیزوں کو مینیج نہیں کر سکا۔ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں پہلے اگر اسمبلیاں تحلیل کرتی تھی تب نہیں کر سکے، تو یہ سوال تو بہت اہم ہے، جس کا جواب شاید میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں حالات اور واقعات کو۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو پتہ ماڈرن دنیا کا ایک انقلاب ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں تو آپ سمجھ رہے ہیں نالائق سے نالائق آدمی، اور کوئی بھی آپ ایشو سامنے رکھے گا تو کوئی ایشو پرابلم ہے، مقصد صرف یہ بتانے کا نہیں ہے، صرف آپ تک ہے کہ یہ کیسی، اور یہ پاکستان میں میرا جہاں تک خیال ہے اس کو سبجیکٹ کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ پوری دنیا اس طرف آگے بڑھ رہی ہے، ہم نہیں بڑھے، لیکن دیکھیں یہ فرق پڑ گیا کہ عمران خان صاحب کی پوری ٹیم نے اس کا بھرپور استعمال کیا۔ اور میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ بتانے کے لیے، تاکہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جیل کے پیچھے رہ کے پورے اخبارات نے اس بات کو خاص طور پر نہ صرف کوریج دی ہے، بلکہ بڑی ڈیٹیل میں یہ ساری ڈسکس کی، اور تقریباً ہر اخبار، ٹائم لے لیں، گارجین لے لیں، اور ٹی آر ٹی ورلڈ، جتنے تقریباً آپ ہر اخبار نے اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے اور فگرز دی ہیں باقاعدہ۔ اس پہ عاشر باجوہ ہمارے دوست ہیں، اکثر اسپیسز پہ ان سے بات ہوتی رہتی ہے، اور مین سٹریم نیوز چینل 40 تھے، پولیٹیکل ویلاگز ڈیجیٹل اونلی چینلز 130 تھے۔ یعنی وہ ٹوٹل جو بتایا نا کہ یعنی کیا ہوا کیا ہے، سارا انگیجمنٹ جو ٹوٹل لیا انہوں نے وہ ساری دی ہے۔ ٹوٹل ویڈیو کاؤنٹ 2790 ویڈیو ہے۔ انگیجمنٹ پورا ذکر کرنے کے بعد انہوں نے پورا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل پلیٹ فارم سے بتایا 2.5 ملین ٹویٹر سپیسز یا لائیو سٹریم کے اوپر اویلیبل تھے لوگ۔ 2.05 ملین جو لوگ ہیں یہ یوٹیوب پہ انگیج رہے، اور 1.85 ملین جو ہیں یہ لائیو سٹریم پہ لوگوں نے انگیجمنٹ رکھی۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے شاید یہ اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ووٹ کیا ڈالنا ہے، ایسا کر
देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन सारी की सारी तादाद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ज़रूर ब्लॉक किए रखा उन्होंने, रास्ता नहीं दिया, लेकिन वीपीएन लगा के लोगों ने बहुत कुछ देखा है। तो ये एक्चुअली ट्रांसफ़ॉर्म करेगी वोटर रियलिटी में। यानी ये जितने लोग निकले हैं, इतने ही लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो परेशानी तो इसी बात की है। यानी अच्छा वाला अब इससे अगला प्लान क्या तैयार हो चुका है? इससे अगला प्लान तैयार हो चुका है कि जो मुतवक्को कैंडिडेट है उनको पकड़ना कैसे है, पकड़-दकड़ कैसे होनी है, वोटर को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचने नहीं देना। तो इस तरह के हालात पैदा करने हैं कि जहां और तंगी की जा सके। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो दो ही बातें नज़र आ रही हैं, वोटर निकल आएगा, वोट डाल देगा और बैलेट बॉक्स में से ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे पीछे चीज़ों को करना। फिर आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्या वजह या क्या खदशात है कि जिस पे इन चीज़ों को उस सिमत में इस्तेमाल ना किया जा सके। लेकिन अभी तो फिलहाल तमाम सियासी जमातें 16 की 16 साथ जोड़कर बैठी हुई हैं। वो ही जो चीज़ों का मुरब्बा जो इमरान खान साहब को गिराने के बाद ऑपरेशन नजीम जब इक़्तिदार में आया, 17 महीनों में रिजल्ट नहीं दे सका, तो आने वाले 5 साल में अब अवाम को किस तरह इन पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है कि वो पहले कुछ नहीं दे सके, अब क्या होगा। इंडिपेंडेंटली ना पाकिस्तान नून लीग जीत रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान जैसे इन्होंने अभी निगरान हुकूमतों में लगाते हुए तमाम सूबे वज़ीर आला अपनी मर्जी के, गवर्नर अपनी मर्जी के लगवा के कंट्रोल किया हुआ है। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो जिस तरह से अब बना हुआ है ना, उसी सेटअप को सामने रख के आगे। लेकिन पंजाब में ज़रा मुश्किल बन गया। पंजाब में तहरीक इस्तेहकाम में पार्टी अलीम खान पंजाब की वजारती आला देने के लिए तैयार नहीं है, और ये वजारती आला के सेक्रीफाइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर वो एजेंडा कामयाब हो गया, एजेंडा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में रखेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर तहरीक इस्तेहकाम पार्टी, साथ बाकी सियासी पार्टी, बलोचिस्तान के अंदर बाप, और वही जो पार्टी है वो अपने ये डिवीजन हो चुकी है। और इन सब का चीज़ों का मुरब्बा उठाकर आप वफाक के अंदर बिठा देंगे कि वफाक में ये लोग हैं जो बैठकर हुकूमत करेंगे। ये वो एक नुक्ता नज़र है जिसको लेकर चल गए। अब वोटर लिस्ट की जो मैं तादाद आपके सामने रख देता हूँ, 2024 में तफसीलात जारी कर दी हैं। बैकग्राउंड पे छोटा सा उसका खुलासा चल रहा है। रजिस्टर्ड वोटों की तादाद जो है ना 12,85,85,760 है, और इसमें इस्लामाबाद के अंदर जो है ना वो 10,83,029 वोट है। बलूचिस्तान में 53,71,947 वोट है। खैबर पख्तूनख्वा में 2,19,28,119 वोटर्स है। पंजाब में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वोटर्स की वो 7,32,07,896 है। सिंध में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 2,69,94,759 है। मजबूरी तौर पर मर्द वोटर्स की तादाद 6,92,63,704 है, और अगली जो तादाद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो खवातीन वोटर की तादाद है, वो तादाद 5,93,22,056 है, जिसने पाकिस्तानी तारीख बदल के रख देनी है, उलट कर रख देनी है। ये वो तादाद है। यानी कि अब जरा समझे होंगे कि पंजाब में खौफ का माहौल क्यों किया है, कि टर्निंग पॉइंट जो है वोटर की बड़ी तादाद पंजाब के अंदर मौजूद है, उसको एंगेज कैसे करना है, जो कैंडिडेट है कैंडिडेट को कैसे आपने बाहर नहीं निकले देना, ये वो सारी बातें। अब इसमें से छोटी सी एक दोस्त है, उन्होंने कोई वर्किंग की है, मेरे पास इसका एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये साबित कर रहा है कि नादरा मिला हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं। अगर ये मैं चाहूंगा कि इस बात को सामने रख के इलेक्शन कमीशन इसका जवाब दे, इलेक्शन कमीशन कौम के सामने लाए कि जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने रखे जा रहे हैं क्या ये सही है। 2018 में केपीके में 15.32 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर मौजूद थे, और मौजूदा वोटर्स की तादाद 21.92 मिलियन है। यानी 6.6 मिलियन या 66 लाख नए वोटर केपीके में। ये बात हो रही है 2018 से 2024 में, 23 की बात आएगी, जिसमें एक से 6 साल का बच्चा भी शामिल है। इसके लिए अगर आप 2017 की मर्दमशुमारी रिपोर्ट का जायजा लें तो एज ग्रुप भी देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। 15 से 19 साल के 32 लोग हैं, और 10 से 14 साल के ग्रुप में 40 लाख के करीब। रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है कि पीकेपीके की हुकूमत के जो डेमोग्राफिक के मुताबिक 83.3% लोग 15 साल से नीचे हैं। इन तमाम अदाद-ओ-शुमार के बाद देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख नया वोटर 2003 के इलेक्शन में शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ से आप नजर आ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गलत कितनी है, और मर्दमशुमारी की रिपोर्ट ये
नादरा को भी सारा इस बात का नॉलेज है। और ये देखिए ये जो है ना बड़ी प्लान तरीके के साथ धांधली का जो प्रोसेस है वो जारी है। अब ये फिगर्स कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन को भी टैग करें, इलेक्शन कमीशन भी सारे हालात और वाक़यात आपके सामने रखें। आखिर में जो बात है वो जस्टिस काजी फाइसा के मुख्तलिफ खतूत हैं, जो अजीबो गरीब सी कहानी सामने आई है। उर्दू में जो बात सामने रखी है, उन्होंने बताया जो 12 अक्टूबर का जो खत है जस्टिस काजी फाइसा के तौर पर जो है ना तुर्की जाने के बाद हैरत अंगेज तौर पर मीडिया पे पहुंच गया है और पूरी सच्चाई वो आश्कार करने का कहते हैं कि रजिस्टर ने 21 सितंबर 2000 को जाहिर ताकि गलत फहमियों का अजाला हो। अब गलत फहमियाँ क्या हैं तो बड़ी अजीबोगरीब, जब वो कह रहे हैं जिस्मानी तलाशी ससना का कायदा सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ना ही ससना का मुतालबा किया है। सो रजिस्ट्रार ने सिर्फ, रजिस्ट्रार को किसने कहा था, सवाल तो है रजिस्ट्रार को किसने कहा था कि इस तजाद की निशानदही करें कि सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जजों के अहल खाना को जिस्मानी तलाशी से इस तरह से, लेकिन मौजूदा जज को अहल खाना में नहीं है। और ये वो बातें हैं दिलचस्प जो लिख कर बहस कर की है। और उन्होंने बताया कि वो जामिया तलाशी भी ली गई, VIP गाड़ी नहीं ली, लैमोजीन नहीं ली, एयरपोर्ट में VIP लॉन्च इस्तेमाल नहीं किया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, VIP लॉन्च तो मुझे मौका मिले तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, इसमें मैं नहीं समझता। लेकिन जो इसमें ख़त जो है ना तो एक तो ये 12 अक्टूबर का ख़त सामने आ चुका है और 21 सितंबर का जो है ना सुप्रीम कोर्ट का अपना लिखा हुआ ख़त बड़ा मज़ेदार है। देवर पर सिक्योरिटी गार्ड issued by you exempt from body search the Chief Justice and Judges of the Supreme Court, retired Chief Justice and Judges of Supreme Court and wives of the retired judges and Judges of Supreme Court, but surprisingly does not exempt the spouse of the serving Chief Justice and Judges of the Supreme Court। कि उनके बच्चों के हवाले से बात है, जो बात यहाँ कही जा रही थी अब यहाँ ये या पता नहीं अब ये खत सच है या झूठ है। रजिस्ट्रार के दस्तखत के साथ ये खत गया हुआ है, इसका जवाब जो है रजिस्ट्रार खुद ही देंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बड़ा हम कह रहे हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा ने पैरामीटर खुद ही ऐसे फिक्स किए थे कि आप सवालों के जवाब तो हो गए, जो बातें कर रहे थे VIP कल्चर के ख़त्म करना है, लेकिन यहाँ तो कॉल ऑफ फेल में तजाद बहुत आ चुका है। और इस पे क्या कोई जुडिशल एक्शन भी होता है, क्या 184(3) में लाकर ये सवाल पूछा भी जा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। कुछ बता रहे हैं कि जनाब जस्टिस काजी फाइसा साहब मीडिया भाई मैंने एक ट्वीट किया था तो उस पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया था, बाकी अब जो कुछ होता रहा है, जो कुछ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में जो कुछ होता रहा है उस पर कुछ नहीं किया तो आगे क्या कर सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।